Good morning students. How are you? I hope you are all good. In my previous video, we discussed chapter number 14, that is electric current and its effect. And we completed the topic, the bulb and element, and also we complete some activity given in your NCERT textbook. Okay. Now, next heading is CFL. The full form of CFL is compact fluorescent lamps. Compact fluorescent lamps. CFL. An electric bulb is basically an electric bulb is basically used for producing light but it also releases the heat which is not desirable because a heat because a major part of the electricity consumed by filament of a bulb is converted into heat results in the wastage of electricity of electricity. So this
by using fluorescent tube lights, fluorescent tube lights or CFLs in place of bulb, in place of bulb. In place of bulb. Compact fluorescent lamps, that is CFLs, an electric bulb is basically used for producing light. जनरली हम लोग क्या करते हैं, लाइट प्रोड्यूस करने के लिए जनरली हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब को यूज करते हैं. अभी हमने प्रीवियस वीडियो में आपको इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में बताया था. यहाँ पे basically used for producing light, but it also release the heat which is not desirable because major part of the electricity consumed by filament of a bulb is converted into heat result. इलेक्ट्रिसिटी बल्ब में फिलामेंट होता है जो हीट प्रोड्यूस करता है, और जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा खर्च होती है, और इससे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होते हैं वो भी मैक्सिमम हायर ही आते हैं. इसके लिए क्या है, बल्ब इज कन्वर्टेड इनटू हीट रिजल्ट इन द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बल्ब बेसिकली उससे बहुत ज्यादा हीट का वेस्टेज होता था. सो दिस वेस्टेज कैन बी डिक्रीज बाय यूजिंग फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट्स और CFLs इन प्लेस ऑफ बल्ब. इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करने के लिए कुछ साइंटिस्ट के द्वारा बेसिकली कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स यानी CFLs का मैन्युफैक्चर किया गया. अब CFL से बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम होती है और लाइट भी हमें लार्ज अमाउंट में मिलता है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो भी बहुत ही लो आते हैं. ओके, नाउ पैराग्राफ चेंज. However, before purchasing bulbs, tubes or CFLs we should look for the ISI mark. And full form of ISI, that is Bureau of Indian Standard. It is because the ISI marks ensures that
ensures that the appliances is safe and wastage of energy is minimum. Basically देखिए, however before purchasing bulbs, tube और CFLs we should look for the ISI mark. हम लोग मार्केट में जितनी भी बल्ब, ट्यूब एंड CFL को खरीदते हैं, परचेज करते हैं, सबसे पहले हम लोग वहाँ पे एक होल मार्क देखते हैं एंड होल मार्क इज ISI एंड फुल फॉर्म इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड. ये एक होल मार्क होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का, जो कि ये शो करता है जो भी हमारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं, एप्लियंसेस हैं, वो कितने सेफ हैं या इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करने में कितने हद तक वो अच्छे हैं. एंड सेफ एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी इज मिनिमम. और अगर वेस्टेज ऑफ एनर्जी इज मिनिमम होगी, जिससे हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी जो होंगे वो बहुत ही लो आएंगे. ओके एंड फिगर This is the figure of CFL, that is compact fluorescent lamps. Compact fluorescent lamp. CFLs and full form is compact fluorescent lamp. And also this is the tube lights. It is known as fluorescent tube lights. Fluorescent tube lights. Fluorescent tube lights. This is the CFLs, that is compact fluorescent lights, and here in this figure that is fluorescent tube lights. If the electric current passes through a wire, now note point, note, fluorescent tubes
contain mercury vapor, contain mercury vapor, toxic in nature, therefore damaged fluorescent tubes or CFLs needs to be disposal disposed of safely. And this is the fluorescent tubes and CFLs, compact fluorescent lamp. Note point: fluorescent tubes and CFLs contain mercury vapor. In this tube lights, यहाँ पे mercury vapor filling होती है, इसमें mercury vapor and symbol of mercury that is Hg. ये टॉक्सिक इन नेचर यानी नेचर के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है. Therefore, damaged fluorescent tubes और CFLs needs to be disposed of safely. इसलिए जितने भी CFLs और फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट्स अगर खराब हो जाते हैं तो इसको बहुत ही सेफली डिस्पोज करना चाहिए. यहाँ वहाँ इसको थ्रो आउट नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये हमारे नेचर में जो इसमें गैस फील होती है मरकरी, ये बहुत ही हार्मफुल होती है. ओके और ये हमारे नेचर को, हमारे एनवायरमेंट को बेसिकली क्या कर सकती है, उसको हार्म कर सकती है. And in this topic, most important is ISI and Bureau of Indian Standard. जितने भी CFLs, फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट्स और अदर भी एप्लायंसेस, गीजर, आयरन, जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं वहां पे एक इंडियन लोगो लगा रहता है, यानी इंडियन हॉलमार्क होता है. ये ISI होता है, इसका सिंबल कुछ ऐसे होता है. दिस इज द सिंबल ऑफ ISI एंड इस सिंबल से हम लोग ये पता करते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है वो हमारे लिए कितने सेफ है और लो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं. ओके एंड फुल फॉर्म ऑफ ISI दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड. नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रिक फ्यूज. इलेक्ट्रिक fuse. Wires made from some special materials melt quickly and break when large electric current
making electric fuses. Electric fuses. Fuses in all buildings. Fuses are inserted in all electrical circuit. Circuits. What is an electric fuse? Wires made from some special materials made quickly and break when large electric currents is passed through them. कुछ वायर्स ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसे मटेरियल से बने होते हैं जिसकी क्वालिटी कुछ ऐसी होती है कि लार्ज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने पे वायर्स क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं. ओके, आर यूज्ड मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज. और उन वायर का जो मटेरियल होते हैं उन्हीं को यूज हम करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज को बनाने में. इन ऑल बिल्डिंग फ्यूज आर इंसर्टेड इन ऑल इलेक्ट्रिक सर्किट. ये सब जितने भी इलेक्ट्रिक फ्यूज होते हैं इसको हम लोग हमारे जितने भी बिल्डिंग होते हैं हमारे घरों में बेसिकली इन वायर के थ्रू ही हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज को प्रिपेयर करते हैं. और इसकी मेन क्वालिटी ये होती है कि जैसे ही हाई वोल्टेज सप्लाई होगा इलेक्ट्रिक फ्यूज का ब्रेक डाउन हो जाता है. यहाँ पे कुछ ऐसे सिंबल, ये एक पतली सी वायर इसमें लगी रहती है और हायर वोल्टेज सप्लाई होने के बाद इन वायर का ब्रेक डाउन हो जाता है और जो हमारे घरों में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है वो तुरंत ही कट कर जाएगी. जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मैक्सिमम पावर की सप्लाई हो रही है. और हमारे जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होंगे, जो भी एप्लायंसेस होंगे, वो बेसिकली क्या होगा, वो खराब नहीं होंगे क्योंकि जो लाइट है वो ऑलरेडी कट हो गई और इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गई. सो this is called electric fuse. Okay, I hope this is clear to all of you. Okay student, thank you and have a nice day.